Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 5th chapter of Social Studies book of Standard 5. The name of the book is Social Studies Success and it is the 5th chapter, and the name of the chapter is Greenland, the land of snow. Okay. In the last video we read about Democratic Republic of Congo. Today we will be dealing with Greenland, the land of snow. In Democratic Republic of Congo, it was located near the equator. The equator used to pass through it. Okay, 0 degree latitude used to pass through it. But here Greenland is located in the frigid zone. Earlier also in the second chapter, I think we have read about temperate zone, tropical zone and frigid zone. So Greenland is located in the frigid zone. You can see very well in the map, which I will be showing a little later. In the map you can see the exact location of Greenland on globe and its location on map also. We will start reading the chapter. In chapter 3 you read about the frigid zones. As you know, it is very cold in the frigid zones. Most of Greenland lies in the frigid zone of the northern hemisphere. The type of climate found in the frigid zones is called polar climate. Both the North Pole and the South Pole have polar climate. The North Pole lies in the Arctic Circle. Most of the Greenland lies in the Arctic Circle. Thus Greenland has a polar type of climate. ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोगों ने फ्रिजिड जोन्स के बारे में पढ़ा था. फ्रिजिड जोन कहाँ के पास का एरिया है? पोल्स के पास का एरिया है, उसको फ्रिजिड जोन्स कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल में भी होगा, साउथ पोल में भी. इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होगा. और हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही कोल्ड एरिया रहता है फ्रिजिड जोन के पास. तो ग्रीनलैंड जो कॉन्टिनेंट है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फ्रिजिड जोन में ही लाई करता है. ठीक है, ग्रीनलैंड पहले तो एक कॉन्टिनेंट में ही आता था, अभी शायद उसको चेंज कर दिया गया है. तो ग्रीनलैंड जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका फ्रिजिड जोन में आता है. और कौन सा, कहाँ के फ्रिजिड जोन में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फ्रिजिड जोन में आता है. अब फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट कैसा होता है? तुम लोग जानते हो पोलर क्लाइमेट होता है ना, आप लोगों ने पहले भी सुना है कि पोलर क्लाइमेट होता है. उसमें 6 मंथ्स तक सन भी नहीं दिखाई देता है पोलर क्लाइमेट में. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो जहाँ पे कि 90 डिग्री लैटिट्यूड है, वहाँ पे हम लोग इस तरह का पोलर क्लाइमेट ही ऑब्जर्व करते हैं. नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल में है. ठीक है, तो ग्रीनलैंड का ज़्यादातर पार्ट किस सर्कल में है? आर्कटिक सर्कल में है. और ग्रीनलैंड का पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है. द नेम ग्रीनलैंड वॉज गिवन बाई एरिक द रेड, ए नॉर्स एक्सप्लोरर. Greenland is to the northeast of North America. Baffin Bay and Davis Strait separate it from the northern islands of Canada. The nearest European country to Greenland is Iceland. Greenland is a part of Denmark and is the largest island in the world. Its capital is Nuuk Godthab. About 80% of the area is covered with ice and snow. The southwestern coast, where most of the people live, is the warmest part of Greenland. Sometimes large chunks of sheets of ice get separated and fall down into seas. The floating mass of ice in the sea is called iceberg. Icebergs are very dangerous for the ships. The International Ice Patrol keeps a watch for icebergs. ठीक है, अब जो है ग्रीनलैंड जो है एक एक्सप्लोरर थे, नॉर्स एक्सप्लोरर थे, वो उधर गए थे. तो उनके नाम से उसका नाम, उन्होंने उसे ढूंढा था तो इसलिए उनका नाम किसने दिया था? एरिक द रेड, वो एक्सप्लोरर का नाम था, उन्होंने ही ग्रीनलैंड नाम दिया था. ठीक है, अब ग्रीनलैंड का लोकेशन अगर हम देखें, देखिए हम लोग का 2 कॉन्टिनेंट्स उधर है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका है. तो जो है नॉर्थ अमेरिका के जो है बिल्कुल मतलब नॉर्थ अमेरिका का हम लोग कह सकते हैं ग्रीनलैंड थोड़ा पड़ोसी है. इट इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अगर हम नॉर्थ अमेरिका के और ऊपर चल जाए, नॉर्थ साइड में चल जाए और थोड़ा ईस्ट साइड टर्न करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हमको क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड मिलेगा. ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में ऊपर का कंट्री क्या है? कनाडा है. तो कनाडा से ग्रीनलैंड जो है वो कितनी दूरी पे है? वहाँ पे बीच में एक, जैसे हम लोग के कंट्री में बे ऑफ बंगाल है, ऐसे ही वहाँ पे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है बैफिन बे है. जैसे बे ऑफ बंगाल वैसे बैफिन बे है. तो एक सेपरेशन बैफिन बे है कनाडा और उसके बीच में, और एक है डेविस स्ट्रेट है.
जो कि कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड से उसको सेपरेट करता है ग्रीनलैंड को। देखिए जो ऐसा नैरो नैरो रास्ता होता है ना, समुद्र का रास्ता होता है नैरो नैरो, दो कॉन्टिनेंट के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में, सबको स्ट्रेट कहते हैं, STRAIT स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि नॉर्थ कनाडा जो है वो थोड़े छोटे छोटे आइलैंड्स में टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। तो उसका जो नॉर्दर्न आइलैंड्स है कनाडा का, उसके और ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट, हाँ, वो दोनों के बीच में कौन सा जो समुद्र का रास्ता आ रहा है वो है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। और ऊपर जो है कनाडा और उसके बीच में कौन सा बे आ रहा है, बैफिन बे आ रहा है ग्रीनलैंड के बीच में। यानी कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय डेविस स्ट्रेट एंड बैफिन बे फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा, ठीक है। और पोलर क्लाइमेट है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, आर्टिक सर्कल में है, ये भी हमने पढ़ा कि ग्रीनलैंड आर्टिक सर्कल में है, इसलिए ग्रीनलैंड का पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सबसे नज़दीक का यूरोपियन कंट्री कौन सा है ग्रीनलैंड से, वो है आइसलैंड। आप लोग देख सकेंगे मैप में, है ना, वो इसके ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड में है आइसलैंड, वो सबसे नज़दीक का कंट्री है उसका आइसलैंड। और आइसलैंड कौन सा कंट्री है, एक यूरोप का कंट्री है। अब जो है ग्रीनलैंड अब पार्ट ऑफ डेनमार्क हो गया एंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, इट्स कैपिटल इज़ नूक। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला ना, पहले वो एक कॉन्टिनेंट था, अब वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, ग्रीनलैंड। और वो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का। उसके कैपिटल का क्या नाम है, नुक, नुक नाम है, या गॉडथैब उसके कैपिटल का नाम है, नुक या गॉडथैब है। यहाँ मैप में तो उसके कैपिटल को दिखाया हुआ नहीं है, नुक या गॉडथैब को। एनीवे 80% एरिया जो ग्रीनलैंड का है वो आइस और स्नो से भरा हुआ है। 80% मतलब 20% लैंड सिर्फ विदाउट स्नो है। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट, हाँ, उसके वेस्ट साइड में जिधर कनाडा है उसके साउदर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में अगर हम लोग जाएंगे ग्रीनलैंड के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट में। हाँ, मैप में नूक या उसका कैपिटल को भी दिखाया गया है, वो भी उसके साउथ वेस्टर्न एरिया में ही है, नूक या गॉडथैब को दिखाया गया है मैप में, उसके साउथ वेस्टर्न एरिया में है। वहीं पे सबसे ज़्यादा उसके पॉपुलेशन वहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड है, वहाँ पे ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पे पड़ती है, वहाँ वो एरिया गर्म रहता है जहाँ उसका कैपिटल है, तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट में ग्रीनलैंड का। कभी कभी जो है बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा, चट्टान जैसा बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है वो आइस का वो अलग हो जाता है, ग्रीनलैंड से टूट के समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। और समुद्र में गिरने के बाद क्या होता है, आइस फ्लोट करता रहता है, वो बड़ा बड़ा आइसबर्ग्स जो है वो फ्लोट करता है। हम लोग जानते हैं ना कि आइस इज़ लाइटर देन एयर, वो लाइटर देन वाटर, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये जो बड़ा बड़ा लार्ज चंक्स ऑफ शीट्स ऑफ आइस जो है, जो कि सेपरेट होकर सी में गिर जाता है, उसको आइसबर्ग कहते हैं। अब आइसबर्ग जो है वो शिप्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। आपने देखा होगा ना, टाइटैनिक मूवी में उन्होंने दिखाया कि एक जो टाइटैनिक शिप था वो आइसबर्ग से ही टकरा गया था। तो आइसबर्ग जो है शिप्स के लिए बहुत डेंजरस होता है क्योंकि वो फ्लोट करता रहता है इधर उधर कहीं कहीं भी। तो एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप से वॉच फॉर आइसबर्ग्स। देखिए, पुलिस का पेट्रोल पार्टी होता है, जो पुलिस इधर उधर घूमता रहता है अपने वैन में कि कहीं कुछ क्राइम तो नहीं हो रहा है रात के समय खासकर। उसी तरह एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल है, ऐसा एक ग्रुप है लोगों का जो यह देखता है कि आइस इधर उधर तो नहीं है कि शिप से टकराने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बोलते हैं, वो ही नज़र रखता है आइसबर्ग कहाँ है कहाँ नहीं, और शिप्स को इन्फॉर्मेशन देता है। Climate. The climate of Greenland is called polar climate. It is extremely cold and chilly throughout the year. The temperature is below 0 degrees Celsius all the year round. There is heavy snowfall. More than 3/4 of this island is covered with snow and ice. In summer, it is bright, sunny and dry. There is a continuous sunlight for several weeks. Greenland is often called as the land of the midnight sun because in summers the sun shines even at midnight. Greenland enjoys more hours of summer than anywhere in south, but the weather is nowhere near warm. In general, it has a harsh climate. ठीक है। अब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीनलैंड के क्लाइमेट के बारे में। तो पोलर क्लाइमेट है।
पोलर क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा है और चिली है पूरा ना, चिल करने वाला। तो इतना ठंडा है कि हम लोग पूरा हाथ पैर कांपने लगे, इस टाइप का ठंडा है। पूरे साल वहाँ पे ठंड रहती है। पूरे साल जो है वहाँ का तापमान टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और वहाँ हैवी स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की बारिश होती है, हैवी स्नोफॉल होता है। आइलैंड का जो 3/4 पार्ट है, अगर हम लोग पूरे आइलैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका 3 पार्ट्स जो है वो हमेशा आइस और स्नो से ढका रहता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, वहाँ बहुत ब्राइट होता है, सनलाइट अच्छे से पड़ता है, और सनी होता है, सब तरफ धूप पड़ती है, वो ड्राई भी हो जाता है वो एरिया, और कई वीक्स तक कंटिन्यूस सनलाइट होता है। पोल्स में ऐसे है ना कि जब सनलाइट होगा कुछ मंथ्स तक पूरा सनलाइट, या कुछ वीक्स तक पूरा सनलाइट होगा, और जब रात होगी तो पूरा 6 मंथ्स तक रात हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ वीक्स के लिए कंटिन्यूस सनलाइट पड़ता रहता है। ग्रीनलैंड का और एक नाम क्या है, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। क्यों? क्योंकि जब समर सीजन में वहाँ पे सन शाइन करने लगता है, चमकने लगता है, तो वो रात में मिडनाइट में, रात के 12 बजे भी सन वहाँ पे शाइन करता है। ठीक है, इसीलिए उसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोलते हैं ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड को साउथ के किसी भी जो है, ग्रीनलैंड इंजॉयज मोर आवर्स ऑफ समर देन एनीवेयर इन साउथ। देखिए, ग्रीनलैंड जो है हमारा वो नॉर्थ पोल में है, और बाकी जो ये कोल्ड का पोलर रीजन वाले वो सब साउथ पोल में है। तो अगर साउथ पोल की जगह को हम कंपेयर करेंगे ग्रीनलैंड से, तो ग्रीनलैंड में ज़्यादा समय समर रहता है। ठीक है, पर फिर भी उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ नहीं होता है, वेदर वार्म नहीं हो पाता है, उसका हार्श क्लाइमेट ही रहता है, मतलब बहुत ठंड और तकलीफ देने वाला क्लाइमेट रहता है। Vegetation. Extremely cold climate and absence of sunlight for 6 months makes it a barren land for plants to grow. The only plants that can be seen are short grass, lichens, and that too in scattered areas. There is practically no greenery to be seen or found. Some flowers can be seen during the spring season. There are no forests and wood has to be brought in from other places. अब जो है, चूँकि वहाँ का एक्सट्रीम वेजिटेशन की बात करें, वहाँ कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, तो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, और वहाँ सनलाइट 6 मंथ्स तक नहीं रहता है। तो किसी भी तरह के पेड़ पौधों को उगाना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, वो एक बैरन लैंड बन जाता है, बंजर ज़मीन बन जाता है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो हम लोग को कैसे प्लांट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं, शॉर्ट प्लांट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घास दिखाई देंगे, लिचेंस जो है एक तरह के छोटे पौधे वो दिखाई देते हैं, और स्कैटर्ड एरियाज़ में, ऐसा नहीं कि एक एरिया में सारे छोटे पौधे, कुछ यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं, ऐसे स्कैटर करके हैं। कभी कभी स्प्रिंग सीजन में वहाँ पे फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं, पर वहाँ पे कोई भी जंगल नहीं है, और अगर वहाँ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो दूर से कहीं से लकड़ियाँ लानी पड़ती है, उसके आसपास कोई भी जंगल नहीं है। एनिमल लाइफ. The polar bear, wolves, Arctic fox, musk ox, and reindeer can bear extremely cold climate. The large dogs called huskies are very important animals which are domesticated and used for pulling sledges. In the sea, seals and many kinds of whales can be seen. ठीक है, अब वहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे पोलर बियर तो मिलेगा ही पोलर रीजन में, फिर पोलर वुल्फ्स भी है ना, लोमड़ी है, सियार है जो ठंड वाले जगह पे रहते हैं, आर्टिक फॉक्स एक वहाँ मिलता है, एक मस्क ऑक्स, ठीक है, एक तरह का जो बैल है मस्क ऑक्स उसको बोलते हैं, वहाँ भी मिलता है, और रेंडियर 12 सिंगा टाइप का सिंग वाला जो हिरन होता है रेंडियर, वह भी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े कुत्ते भी वहाँ पे मिलते हैं, लार्ज डॉग्स मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं, हस्कीज कहते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एनिमल्स के लिए। जो बड़े डॉग हैं उनको हस्कीज कहते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं। उनको क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट करते हैं लोग, ये जो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं वहाँ पे उनको पूरा डोमेस्टिकेट करते हैं, पाल के रखते हैं, और उनकी मदद क्या चीज़ में लेते हैं, स्लेज को खींचने में, और जो बर्फ़ की गाड़ी होती है ना उसको खींचने में ये कुत्ते मदद करते हैं। जैसे हम लोग के इंडिया में दूसरे पार्ट्स में क्या होता है, बैल खींचते हैं बैलगाड़ी को, घोड़ा खींचता है तांगा को, उसी तरह वहाँ पे बर्फ़ की गाड़ी होती है जिसे कौन खींचता है, स्लेजेस जिनको बोलते हैं, उनको यही हस्क डॉग्स खींचते हैं, इनको हस्कीज बोलते हैं।
लाइफ ऑफ द पीपल। अच्छा, और जो है और कौन से जानवर वहाँ पे दिखाई देते हैं? समुद्र वहाँ पे तो है ही, आर्टिक ओशन है, वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे क्या दिखाई देता है? सील्स दिखाई देता है और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स। ठीक है, सील भी एक बड़ा जानवर है जो कि सब पोलर रीजन में ही मिलता है, तो सील्स दिखाई देता है। Life of the people. Eskimos or Inuits are the original inhabitants of Greenland. They are short and stout people with a yellow colored skin. They are mainly hunters. They hunt whales, walrus, polar bears and seals. In the past they used bows and harpoons to kill the animals. ठीक है, तो जो है जो वहाँ के ओरिजिनल लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं? एस्किमोज और इन्यूट्स कहते हैं, जो शुरू से वहाँ पे रहते आ रहे हैं, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। वो लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वो लोग हंटिंग करते हैं। ठीक है, वो लोग मेनली हंटर होते हैं, वो कुछ कुछ जानवरों को मारते हैं और उनको फिर खाते हैं। किसको? वेल्स, चूँकि वो ओशन है वहाँ वेल मिलता है, वालरस मिलता है। ठीक है, वो जो 2 बड़े बड़े दांत वाला जानवर होता है, वालरस मिलता है, पोलर बियर और सील। ये सब जो समुद्री ओशन में रहते हैं, ठंडे ओशन में, इन सबको मार के वह खाते हैं। और किससे मारते हैं? बोज और हारपून से, मतलब तीर धनुष की मदद से मारते हैं, और हारपून हुआ एक तरह का भाला हुआ, उसको ही वो लोग मारते हैं उससे। ठीक है, वो लोग कैसे लोग हैं? वो शॉर्ट और स्टाउट लोग हैं, मतलब कि कम हाइट के हैं और ठीक ठाक हेल्दी बिल्डअप है। कम हाइट के वो लोग हैं, हेल्दी बिल्डअप है, और उनका स्किन का कलर कैसा है? येलो कलर का स्किन है। आपने एस्किमोस देखा होगा ना, बड़े बड़े जैकेट वैकेट पहने हुए, उनका फोटो अक्सर मैगजीन्स में आता भी है। A harpoon is a long spear which is thrown from a distance at the prey. A rope attached to harpoon is used to pull back the animal which has been killed. During winters, the Eskimos hunt for seals. There is a special technique adopted for hunting. A round hole is made on the top of a frozen river. The seal or fish swimming or present under the ice comes near the hole to breathe. Eskimos then kill them with their spears. Eskimos are meat eaters. They use animal hide for clothes and tents. Clothes made of seal skin provide warmth. The fat or blubber of seals and whales is used as fuel to give heat and light. हाँ, तो जैसे हारपून के बारे में मैं बता रही थी, हारपून क्या था? एक भाला होता है, लंबा सा स्पीयर, लंबा सा एक भाला होता है जो कि बहुत दूर से ही जानवर के ऊपर फेंका जाता है, अपने प्रे पे, मतलब अपने शिकार के ऊपर आप दूर से फेंकेंगे। और उसमें क्या होता है? एक रस्सी पीछे बंधी हुई रहती है, तो जब वो जानवर में अटक जाएगा, आप वो रस्सी को से उसको वापस खींच लेते हैं। ठीक है, तो जो जानवर मरा है वो भी उस रस्सी के साथ खिंचा के वापस आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज़ में भी ये दिखाते हैं हारपून को। ठंड के समय में क्या होता है? एस्किमोस जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? सील्स का हंटिंग करते हैं, है ना, सील का शिकार करते हैं। सील एक काफ़ी बड़ा जानवर होता है, कई बार लोग उसको एक मछली भी बोलते हैं, पर एक्चुअली वो मछली नहीं है, तो उसका शिकार लोग करते हैं। ठीक है, उसकी एक स्पेशल टेक्निक है ये शिकार करने के लिए। वहाँ तो पूरी बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के नीचे नदी है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? कोई नदी अगर जम गई है, हाँ, ऊपर ऊपर जम गई, अंदर अंदर पानी रहता है, तो ऊपर एक जगह पे होल बनाते हैं, उस आइस के ऊपर वो लोग होल बना देते हैं। तो जो अंदर जो भी सील या जो भी मछली तैर रही होती है, वो आ जाती है उस होल के पास सांस लेने के लिए, क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर जा रही होती है। तो जब वह सांस लेने आती है, उसी समय जो है ये एस्किमोज लोग अपने स्पीयर्स के मदद से, वो अपने भाले के मदद से उसे मार देते हैं और फिर भाले को खींच के उसको निकाल लेते हैं। एस्किमोस क्या खाने वाले होते हैं? मीट खाने वाले होते हैं। ठीक है, और वो जो एनिमल का जो हाइड होता है, मतलब एनिमल का जो स्किन होता है, मारने के बाद एनिमल का फ्लैश को लोग खाएंगे, और एनिमल का जो स्किन है उसको एज अ क्लोथ्स, कपड़ों के रूप में यूज़ करते हैं, पहनते हैं, और टेंट भी बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्लोथ्स मेड ऑफ सील स्किन प्रोवाइड वार्मथ। अब जो कपड़े जो हैं सील जानवर के स्किन से जो कपड़े बने रहते हैं, उससे गर्मी उनको बॉडी में लगती है। अब क्या है कि जितने भी ये पोलर रीजन में रहने वाले जानवर हैं ना, सबके स्किन में, पेट के नीचे ना, स्किन के नीचे ब्लबर होता है, फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है, ताकि उनको जब बहुत हाइबरनेशन में वो जाए, बहुत ठंड पड़ने लगे, बहुत 6 महीने वो सोते रहे, तब वही ब्लबर उनका काम आता है, वही फैट उनको एनर्जी देता रहता है। ठीक है, तो ये सील्स में भी पाया जाता है और वेल्स में भी पाया जाता है। तो सील्स और वेल्स का ये ब्लबर को निकाल के उसको जलाते हैं, और वह जलता भी है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू गिव हीट एंड लाइट, है ना। इस तरह हम लोग दिए में
तेल डाल के जलाते हैं तो हीट और लाइट दोनों मिलता है। उसी तरह वो लोग जो है सील्स और व्हेल्स के ब्लबर को या फैट को लोग जलाते हैं तेल के जैसा, और उससे हीट एंड लाइट मिलता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ बताया गया, एक हार्पून और एक स्पीयर। स्पीयर में क्या अंतर है, एक लंबा सा डंडा जिसके आगे एक ट्रायंगुलर टाइप का नोकीला बना रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा, ट्रायंगुलर भी नहीं, रोम्बस ऑलमोस्ट रहता है, तो वो होगा भाला जिसको कि स्पीयर कहते हैं हम लोग। और अगर उसी भाले में पीछे रस्सी बांधा रहेगा तो उसे कहेंगे हार्पून कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोथ्स के बारे में। द पीपल वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सील, वॉलरस एंड रेंडियर स्किन। Waterproof shoes are made of seal skin, sewn with reindeer thread. Jackets with hoods lined with fur are worn by men, women and children. Such a jacket is called a parka. अब वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, सील के स्किन के कपड़े पहनते हैं, वालरस के स्किन के और रेंडियर जो हिरन है उसके स्किन के वो लोग कपड़े पहनते हैं। फिर ना जूते जो है वाटरप्रूफ जूते वो लोग बनाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ के पानी में भीग जाता है, तो वाटरप्रूफ शूज़ वो लोग क्या चीज़ से बनाते हैं, वही सील के ही स्किन से बनाते हैं। ठीक है, सील के स्किन से बनाते हैं। और जो है जब वो जूते बना रहे हैं तो जूते को सिलाई करके ठीक करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तो लोग उसको सिलाई कैसे करते हैं, तो स्विन विद रेंडियर थ्रेड्स, रेंडियर के जो छोटे छोटे बाल निकलते हैं उससे वो धागा बना के उससे उस जूते को सिलाई करते हैं, जो कि सील के स्किन का बना हुआ जूता रहता है, वाटरप्रूफ जूता रहता है। इसी तरह वो लोग जो जैकेट्स पहनते हैं उसमें हुड लगा रहता है, मतलब सिर पे लगाने वाली टोपी जुड़ी रहती है, तो जो हुड होता है उसके साइड में फर निकला हुआ रहता है ताकि गर्मी मेंटेन रखे, हाँ, चेहरे की गर्मी को मेंटेन रखे। तो जो है वो जो फर है उसमें फ़र लगा रहता है, साइड में किसी भी एनिमल का फ़र लगा रहता है। तो इस तरह का जितना भी जैकेट्स है जिसमें हुड है और फ़र लगा हुआ है, वो जैकेट्स वहाँ के एनिमल स्किन से बना हुआ है, और जो कि मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब वहाँ पहन रहे हैं। उस जैकेट को क्या कहते हैं, पारका कहते हैं। ठीक है, हाउसेस, एस्किमोस कॉल देयर हाउसेस इग्लूज। इग्लूज कैन बी मेड ऑफ आइस, स्नो और इवन वुड. Eskimos live in snow houses only in winters. The houses are made of blocks of the animal skin. The houses are made of blocks of ice. The houses are made of blocks of ice. Animal skin is used to make floors. Winter houses can be made in a few hours. In summer, the Eskimos have nowadays started living in modern houses. They also live in skin tents called taupigs. अब घर के बारे में देखें, हाँ, तो एस्किमो अपने घर को इग्लू बोलते हैं। हम लोग सब जानते हैं ना, बर्फ़ का बना हुआ सेमी सर्कल घर और डोम के जैसा, उसे इग्लू कहते हैं। इग्लू आइस से भी बना सकते हैं, स्नो से भी बना सकते हैं, और इवन वुड से, लकड़ियों से भी इग्लू बना सकते हैं। तो विंटर के समय तो ये स्नो वाले हाउस में रह जाते हैं, स्नो से बना हुआ जो घर रहता है। क्यों? क्योंकि वो हवा को अंदर घुसने नहीं देता है। तो ये लोग जो है विंटर के समय स्नो हाउस में ये लोग रह जाते हैं। ये हाउस जो है वो बड़े बड़े आइस के ब्लॉक से, बड़े बड़े आइस के टुकड़ों से बनाया जाता है। और जो एनिमल स्किन है, जिस एनिमल को इन लोगों ने हंटिंग किया है, शिकार किया है, उसका जो स्किन निकाला है उससे अपने इग्लू में ज़मीन पे वो फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोर में वो बिछाते हैं और उसी के ऊपर वह बैठते हैं। ठीक है, एनिमल स्किन को। और विंटर हाउस जो उनका इग्लू है, स्नो का बना हुआ, तुरंत कुछ घंटों में बन जाता है, फटाफट ये लोग बना लेंगे और उसमें रह जाएंगे। वो गर्म रखता है ना, ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देता है। आजकल जो है समर के समय एस्किमोस जो है वो मॉडर्न घरों में रहने लगे हैं, सीमेंट वेमेंट का बना हुआ मॉडर्न घर में रहने लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी एस्किमोस हैं जो स्किन के ही टेंट में रहते हैं, वहाँ से नहीं निकलते, उनको कहते हैं टाउपिग्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्किमोस हैं जो मॉडर्न घरों में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जानवर के स्किन का टेंट बना हुआ रहता है उसमें रहते हैं। और वो जो स्किन के टेंट का बना हुआ घर रहता है या जानवर के स्किन का जो टेंट होता है उसे टाउपिग्स कहते हैं। The main means of transport of Eskimos are sledges, which are pulled by reindeers or huskies, which are strong and tough wolf-like dogs. They also travel in boats called kayaks, made out of skin of animals and can usually accommodate only one person. Omak is broader board used for carrying women and children. ठीक है,
मेन यातायात का साधन, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका क्या है, किस चीज़ में बैठ के वो इधर से उधर जाते हैं, वो है स्लेजेस। हाँ, बर्फ़ की गाड़ी है जिसमें चक्के लगे रहते हैं। बर्फ़ की गाड़ी मतलब लकड़ी की गाड़ी है जिसमें चक्के लगे रहते हैं जो बर्फ़ पे चलता है। और उनको कौन खींचता है उनके स्लेजेस को, तो उनके स्लेजेस को वो जो बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, हस्कीज, वो खींचते हैं, या रेंडियर्स जो है, हिरन है वहाँ के पोलर रीजन के हिरन, वह उनको खींचते हैं। अच्छा, अब जब गर्मी के दिनों में मान लो स्नो थोड़ा थोड़ा पिघल गया है, तो जो रिवर है, रिवर से इधर उधर जाने के लिए वो लोग जो है बोट में जाते हैं। उस बोट को वो कयाक कहते हैं, जो कि एनिमल के ही स्किन से बना हुआ रहता है, और यूजुअली उसमें एक ही आदमी बैठ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाता है। वो खाली रिवर से इधर उधर जाने के लिए उसको यूज़ करता है, कयाक, एनिमल स्किन से बने हुए बोट को। ठीक है, और उससे ज़्यादा चौड़ा बोट होगा, ज़्यादा ब्रॉडर बोट जो होगा, उसे ओमैक कहते हैं, जिसमें कि वुमेन, चिल्ड्रन सबको एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। कयाक में क्या होता है, सिंगल पर्सन जा सकता है, पर ओमैक में एक से ज़्यादा लोग जा सकते हैं बैठकर। इन रिसेंट टाइम्स life of Greenlanders has changed a lot. They have started adopting modern means to hunt. They have an access to modern machinery as well as radio, TV, steel knives, motorized sledge called skidoo for transport. They use motorboats for fishing. There are hospitals, shops, colleges, schools in many towns. There is a provision for compulsory computer education for children up to 14 years. Hunters now use rifles for killing animals. Small scale industries have developed. Their farms have been set up for animal breeding. Nuuk has the main population of Greenlanders. It is a modern city with a high school. Air transport has developed and Greenland has become an important air base for flights between North America and Europe. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, उसके बाद अब जब अभी कुछ समय से, हाँ, जब मॉडर्न होने लगा है पूरा वर्ल्ड, तो यहाँ पे ग्रीनलैंडर लोग भी चेंज हो गए हैं। अब लोग वो मॉडर्न तरीके ढूंढते हैं शिकार करने के लिए। ठीक है, अब उनके पास मॉडर्न मशीन्स भी है, वो अब रेडियो सुन पाते हैं, टीवी देख पाते हैं। उनके पास जो चाकू है, नाइफ्स जो है वो स्टील की बनी हुई नाइफ्स है। उनका जो स्लेज है, जिसको कि पहले हस्कीज या रेंडियर खींचते थे, वो अब मोटर से चलता है, वो मोटराइज स्लेज है। ठीक है, और उस मोटराइज स्लेज का नाम क्या रखा है, स्कीडो। हाँ, वो स्कीडो उनके स्लेज को, उनके गाड़ी को, बर्फ़ की गाड़ी को खींचता है इधर से उधर मोटर की मदद से, उसको स्कीडो कहते हैं। ठीक है, उन लोग अब जब फिशिंग जाते हैं रिवर में, उसमें भी मोटर बोट में बैठ के जा रहे हैं, और कयाक में या ओमैक में बैठ के नहीं जा रहे, मोटर बोट में बैठ के जा रहे फिशिंग करने। अब उनके टाउन में हॉस्पिटल बन गया है, शॉप है, दुकान है, कॉलेज है, स्कूल है, सब कुछ बन गया है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि नहीं, कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को देना है। 14 ईयर्स के एज तक सारे बच्चों को कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब वहाँ हंटिंग का नया क्या तरीका ढूंढे। एक तो बोट में जाना छोड़ दिए, अब तो है वो लोग मोटराइज बोट्स में जाते हैं, मोटर बोट्स में जाते हैं। दूसरा, अब वो लोग हार्पून या स्पीयर नहीं यूज़ करके अब क्या यूज़ करते हैं, राइफल्स यूज़ करते हैं, बंदूक यूज़ करते हैं एनिमल्स को मारने के लिए। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बन गए हैं। और जो उसका कैपिटल है नूक, ठीक है, नूक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ग्रीनलैंडर्स का। वहाँ छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन गए हैं, फार्म्स बन गए हैं जहाँ जानवर को पाला जाता है और उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, एनिमल ब्रीडिंग के लिए फार्म्स बन गए हैं। और उनका कैपिटल सिटी कौन सा, नूक है, जहाँ मेन पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड का, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरा मॉडर्न सिटी है, हाई स्कूल भी है वहाँ पे। ठीक है, नूक जो उसका कैपिटल, आखिर कैपिटल क्यों बना गया, क्योंकि वो मॉडर्न सिटी, वहाँ पे हाई स्कूल है, बच्चे हायर एजुकेशन ले सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप किया गया है। ठीक है, एयर के रास्ते भी आप इधर उधर जा सकते हैं। और ग्रीनलैंड एक इम्पॉर्टेंट एयर बेस बन गया है। एक तरह का कह सकते हैं ग्रीनलैंड एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, जहाँ पे कि अगर यूरोप से कोई फ़्लाइट जा रहा है नॉर्थ अमेरिका, तो कुछ देर के लिए ग्रीनलैंड में वेट कर सकता है, रुक सकता है। एयरबेस वहाँ के ग्रीनलैंड के एयरबेस में फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका जाते हुए बीच में वो रुक सकता है। तो ये ग्रीनलैंड की टोटल कहानी आपने समझ ली है ना। इंटरेस्टिंग भी है, और कैसे वो लोग ऐसे वेदर में रहते होंगे ये भी सोचना मुश्किल है। एनीवे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। चैप्टर ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ स्नो 5th चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग सब अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब करने भी बोलिए, और बेल बटन दबाना नहीं भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है आपको तुरंत अलर्ट बटन मिल जाए।
और क्या, ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ के भी, क्योंकि नई नई बातें सीख रहे हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। कंटिन्यू रीडिंग। ओके, थैंक यू।